Hello, this is Fatser here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our Class 5 EVS with chapter number 8, A Treat for Mosquitoes. As I have given questions to you that you'll have to answer in the comment, but I still not getting proper response of you. So at last, as I have given also time limit to give this question answer, then let's start our today's point with questions answer. And if you have found questions answers, then let compare your answer with mine. Find out and tell. Have you seen any poster like this put up anywhere? क्या ऐसा पोस्टर आपने कहीं पे किसी जगह पे लगा हुआ देखा है? देन probably all your answer is yes, that you may or you surely have seen such posters near your school. And as you know that nowadays COVID-19 corona pandemic, right? So this disease is spreading more and more in our country. So regarding this or related this, everywhere you are seeing or you can see COVID-19 posters nearby your area or your school, or you can say wherever you go, right? You can see such posters where what kind of precautions that you have to take, and what kind of symptoms if a person is suffering from this disease. So such things are mentioned in such posters too. Even if we talk about our Bharuch district or Bharuch city, then near Jilla Panchayat or public places like bus stop, railway station, right? Such at such places you can see such posters of disease, or you can say different disease. You may have seen a poster of TB, tuberculosis, right? As well as diabetes, uh, cholera, skin infections disease, right? Etc. etc. Number 2. Who do you think puts up such posters, or gives ads in the newspaper? Then definitely it was or it is the concern of government. So definitely the government does so. Government puts up such posters to aware people or to make more awareness in people. And also government give such ads in the newspaper, so the reason why people can understand about such disease, know the symptoms of such disease, as well as at first level or at initial level they can precaution or they can care their selves too. सो पोस्टर्स को लगाना और पोस्टर्स में ऐसी बीमारियों के बारे में न्यूज़पेपर में ऐसी बीमारियों के लिए ऐड देना, ये सारा का सारा काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है. इसकी वजह ये होती है दैट कि जो बीमारी फैल रही है उससे लोगों को बचाना है और लोगों को आगाह करना है दैट कि ये बीमारी खतरनाक है, इससे आप सावधान रहो और इसके होने से बचो. और अगर हो जाती है देन इनिशियल लेवल पे जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट मेंशन करती है पोस्टर्स में उसको करना चाहिए, जिससे आप उससे होने वाले जो रिस्क है, उससे जो होने वाले यानी हार्मफुल जो डिसएडवांटेजेस है या फिर उसके जो एक हार्मफुल जो फैक्टर्स है उससे आप बच सको.
What are some of the important points given in the poster? As I have discussed the important points in the poster, but for a poster which was mentioned above in your textbook regarding malaria, so we'll have to give answer of that poster. Then first of all, you can see, right, they have point out that beware of mosquitoes. Why? Because they cause serious disease like malaria, dengue and चिकनगुनिया. यानी सबसे पहले पोस्टर्स में ऐसा बतलाया गया है डेट कि आप मॉस्किटो से क्या रहो, सावधान रहो. यानी इतने छोटे इंसेक्ट से सावधान रहने को क्यों बोला गया है डेट कि ये जो छोटे हैं लेकिन ये जो बीमारी फैलाते हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारी है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. आफ्टर दैट कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला गया है? दैट डोंट अलाउ वाटर टू स्टेजनेंट अराउंड यू, यानी आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जो खराब पानी है उसको जमा होने मत दो. क्लियर योर सराउंडिंग्स टू रूल आउट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज. अगर पानी जमा हो जाते हैं देन उसको क्या कर लो, सराउंडिंग्स को क्लीन कर लो. नाउ एक्स्ट्रा केयर कैसे रखी जाती है? देन फिश कैन बी पुट इन पॉन्ड्स टू रिमूव मॉस्किटो लार्वे. यानी फिश को कहाँ पे डाला जा सकता है? पॉन्ड्स में डाला जा सकता है. ये हम अगर सिटीज़ की बात करें देन सराउंडिंग्स को क्लीन किया जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्लीन करती है, कंटामिनेटेड एरियाज़ को क्लीन करती है, ड्रेनेज सिस्टम को, गटर सिस्टम को रिपेयर करती है. बट जहाँ पे हम बात करें दैट विलेज लेवल की, तो वहाँ पे भी क्या होता है दैट के पॉन्ड्स में मछलियों को डाला जाता है. वाई शो? बिकॉज कि वो लार्वे को क्या करती है, खा जाती है, जिससे मॉस्किटो के ब्रीड होने के चांसेस ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. देन दिस इज़ ऑल्सो द स्टेप बीइंग टेकन बाय द पीपल एज वेल एज गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. नाउ number 5 you can say means another point, mosquito net should be used to prevent against mosquito bite. As many times you may have seen, or so many from you means so many are using such mosquito net at your house, right, to sleep in, right. So the reason why you can survive from the bites of mosquitoes. And kerosene oil should be sprayed on water to prevent mosquito eggs to grow. और कहीं कहीं पे केरोसिन को क्या किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, ताकि मॉस्किटोज वहाँ पे ब्रीड ना कर सके. Now let's move to the next. Think. Why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? Yani as I have mentioned, that it talks about putting fish in the tank because fish eats larvae of mosquitoes. यानी जो मॉस्किटोज़ के जो लार्वे होते हैं जनरली वो फिश के लिए क्या होता है, खाना होता है, देन वो खा जाते हैं. सो द रीज़न वाई एक चांसेस जो मॉस्किटोज़ के ब्रीडिंग होने के या फिर नंबर ऑफ़ मॉस्किटोज़ बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. देन such a way, by putting fish in the tank, right, we can reduce the risk of spreading malaria, dengue and chikungunya, right, as we reduce the larvae or baby mosquitoes. Now what will happen when oil is sprayed on the water? As I have mentioned in earlier point that why this oil sprayed or kerosene oil sprayed onto the water. Then generally the thin film of oil on water prevents oxygen supply to eggs and larvae of mosquitoes and thus they are killed.
यानी क्यों केरोसिन ऑयल स्प्रेड किया जाता है? देन केरोसिन ऑयल जो स्प्रेड किया जाता है कि जिसकी वजह से उसके जो एक थिन लेयर यानी उसका एक थिन लेयर क्या करता है दैट के मॉस्किटोज़ के जो एग्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रोक लेता है। एंड ऑक्सीजन रुक जाता है देन क्या हो जाता है, सफोकेशन। उसके बाद कोई भी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है अगर ऑक्सीजन को रोक दिया जाए तो। देन सेम वे फॉर द with the same concept, right? Kerosene oil sprayed on the water. As I have forget to answer of these last questions, why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster, right? Then I have answered this question before too, but let repeat that question's answer. Then these are the places where water can stagnate and could allow mosquitoes a breeding ground. मीन्स कि ये सारी की सारी जगह पोस्टर्स में बतलाई गई है, उसकी वजह से बतलाई गई है दैट कि ये मॉस्किटोज़ एग्स को ब्रीड करने के लिए या फिर मॉस्किटोज़ को ब्रीड करने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. सो द रीज़न वाई यू कैन सी tank, cooler and pits in the poster. Now let's move to the next. Find out which diseases are spread by flies and how. Now here we have discussed in lesson that Rajat got surprised that flies don't bite us. Then how it spread disease, right? यानी जो फ्लाइज होती है वो हमें बाइट करती नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों वो डिजीज को स्प्रेड करती है. बट एंड हियर गिवन दैट विच डिजीज, देन जनरली flies spread disease like dysentery, cholera, typhoid, etc. But how? So when a fly sits on contaminated material, यानी अगर फ्लाई किसी खराब चीज़ पे यानी सड़ी हुई चीज़ पे या फिर गंदी जगह पे बैठ के या फिर खाने पीने के ऊपर या फिर गंदे मटेरियल के ऊपर से आई होती है तो उसके साथ हार्मफुल जर्म्स स्टिक टू इट्स लेग. तो जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो उनके पैरों के साथ चिपक जाते हैं. When the same fly sits on food, the germs get transferred to the food. Thus, a fly spreads various disease. Right? So, होता क्या है दैट कि जो फ्लाई कंटामिनेटेड मटेरियल के ऊपर बैठती है यानी गंदी जगहों पे बैठती है, गंदी जगहों से होके आती है, देन वो गंदी जगहों के जो जर्म्स होते हैं उनके पैरों के साथ स्टिक हो जाते हैं. और पैरों के साथ स्टिक होने के बाद जब वो हमारे घरों में आती है या फिर जब हम जो खाना खाने के लिए चीज़ें अगर खुली पड़ी हुई है देन उसके ऊपर बैठती है, देन उनके जो जर्म्स होते हैं उस खाने के साथ क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. और जब हम वो खाना या फिर खाने पीने की चीज़ें जब खाते हैं देन चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, डिजीज़ फैलने के यानी बीमार होने के. और कौन कौन से डिजीज़ फैलने के चांसेस है, डाइसेंट्री, कॉलेरा, टाइफॉइड, एंथ्रैक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ next point, make a poster. In your group, make a poster with a message to keep the cooler, tank, drains and the area clean wherever water collects.
पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल, यानी यहाँ पे एक पोस्टर आपको बनाना है, राइट। एज आप लोग अभी घर पे हो, राइट, देन आपको ये पोस्टर अपने आप से, राइट, कौन से पेज पे बनाओगे, राइट, जो आपका एक ड्राइंग पेज आता है, राइट, ड्राइंग बुक का एक पेज आता है, उसके ऊपर आपको एक छोटा सा यानी ये पोस्टर आपको बनाना है, राइट। और वो बनाने के बाद आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, राइट। और जिन स्टूडेंट का पोस्टर या फिर जिनका पोस्टर सबसे अच्छा रहा उनको रैंक दिया जाएगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, in your group make a poster with a message to keep the cooler, tank, drains and the area clean, यानी आपको एक मैसेज बनाना है, राइट। और उस पोस्टर को आपको मेरे पर्सनल नंबर पे क्या करना है, सेंड करना है, राइट। यू ऑल आर नोइंग दैट आई एम फैज सर। सो आपको मेरे नंबर पे ही क्या करना है, ये पोस्टर यानी मैसेज के पोस्टर्स को आपको क्या करना है, भेजना है। जिसका मैसेज या फिर जिसका पोस्टर सबसे अच्छा लगा, राइट, या फिर आप लोगों के जो भी पोस्टर्स आते हैं उनमें सबसे अच्छा मैसेज जो लगेगा उसको रैंक दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट you also have to write a letter or find out first, and after that you have to write that find out who is responsible for keeping the area around your school clean। आपकी स्कूल का जो एरिया होता है या फिर स्कूल के आसपास का जो एरिया होता है उसको क्लीन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किन की होती है। राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास, आपके क्लास में से यानी आपको ही क्या करना है, लेटर लिखना है। रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस, और आपको क्या करना है, उसके बारे में चेकआउट करना है या फिर उसके वो प्रॉब्लम्स के बारे में वो लोग फाइंड करें और उसके बाद उनको सजेशन या फिर वो क्या क्या कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग सजेशंस देने हैं। फाइंड आउट टू whom the letter should be written and to which office it should be sent, और आपको ये फाइंड आउट करना है दैट कि ये लेटर किनको कौन सी ऑफिस को लिखा जाता है और ये किस इंसान को या फिर किस अथॉरिटी को मेंशन करके लिखा जाता है। दिस इज़ just and just because for your knowledge based concern, right, try to find out and do the same, right। यानी जो पोस्टर आप बनाओगे उस पोस्टर के पीछे ही ये लेटर आप लिख सकते हो ताकि आपका जो पेपर है वो पेपर वेस्ट ना हो, राइट। दैट ऑन द फर्स्ट साइड यानी आइदर साइड you can on one side you can prepare a poster or a message and उसके पीछे आपको ये लेटर लिखना है and both can be sent right on my personal number, right, and the same given rank to you, right, जिनका यानी सबसे अच्छा होगा वो। That's all for today. Inshallah in next we will see a next point, survey report. So thank you and have a nice day.